বিক্রি হওয়ার হাত থেকে বরাত জোরে বাঁচলেন শিলচরের বহু যুবতী। দিল্লিতে প্রতারকের ফাঁদ থেকে বেঁচে ঘরে ফিরে এলো কাছাড়ের 23টি কিশোরী ও যুবতী। দিল্লি থেকে ফিরে এসে তারা ভেলওয়ার ফেবটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রশিক্ষণ সেন্টারের ম্যানেজার বিবেক কুমার, সৌমিত্র দাস সহ 8 জনের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কাছে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। দিল্লি থেকে ফেরত আসা যুবতী ও কিশোরীরা জানান, শিলচর 20 থাকা ভেলওয়ার ফেবটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড নার্সিং ট্রেনিংয়ের জন্য গত বছরের মে মাসে ভর্তি হয়েছি। 6 মাসের কোর্সে 4 মাস থিওরি এবং 2 মাসের প্র্যাকটিক্যাল। কোর্স শেষ হওয়ার পর দিল্লির সারদা হাসপাতালে নিযুক্তির কথা বলে আমাদের নিয়ে যায় সৌমিত্র দাস বলে এক এজেন্ট। কথা ছিল দিল্লিতে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকবে। সেখানে যাওয়ার পর কোনো ধরনের থাকার ব্যবস্থাই ছিল না। প্রথম রাতে দিল্লি হরিয়ানা রোডে একটি রুমে থাকতে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে দেখতে পাই রেড লাইট এলাকা। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় গাজিয়াবাদ। তারপর সৌমিত্র আমাদের যশোদা হাসপাতালের নিখিল বার্মা নামে এক ব্যক্তির কাছে সমঝে দেয়। নিখিল বার্মা যশোদা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সাফাইয়ের কাজে নিযুক্তি দেয়। এই কাজে আপত্তি জানালে নানা ধরনের হুমকি দেন নিখিল বার্মা। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে আসি আমরা, না হলে আমাদের নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করে দিত। এদিকে ভেলওয়ার ফেবটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তারা কিশোরীদের উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করে ঘটনার উপযুক্ত তদন্তর দাবি করেছেন। বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, তারা শিলচরের বুকে গত 4 বছর ধরে সুনামের সঙ্গে বরাকের শিক্ষিত বেকারদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছে। অনেকেই আজ স্বনির্ভরশীল এবং বিভিন্ন হাসপাতালে নিযুক্ত থেকে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। বর্তমানে যারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তা পুরোপুরি মিথ্যে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে এদিন জানিয়েছেন তারা। ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে প্রয়োজনে তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা। কিন্তু এতজন যুবতীকে মিথ্যে অভিযোগ উত্থাপন করবে? উঠছে প্রশ্ন। অবশ্য সবকিছুই স্পষ্ট হবে তদন্তে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ অবিকল। क्वेश्चन हमें पहले जीडीए कोर्स कराया गया है सेंटर में 4 महीना, और फिर हमें हॉस्पिटल अपना ब्लॉक में किया 2 महीना, और उसके बाद सेंटर से हमें लिया गया है दिल्ली में जाके जॉब देने के लिए बोला था, लेकिन हमें जॉब दिया तो वही स्टैंडर्ड साइन एंड स्टैंडर्ड वही जॉब दिया है, और ड्रेस भी ऐसा ही दिया है जैसे कि हम झाड़ू पोछा करने के लिए आए हैं। लेकिन हमें इतना बेवकूफ़ बनाया सर ने, और फिर यहाँ से सर ने हमें बेड और फिर सीसी कैमरा वो सब देंगे बोला, हॉस्टल रूम भाड़ा वार्डन वो सब देंगे बोला था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे लाइट वाइट फिटिंग भी नहीं किया। हमने सर को ज़बरदस्ती करने के बाद सर ने हमें लाइट वाइट लगा के दिया था, लेकिन गार्जियन यहाँ पे वार्डन भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। और फिर हमें यहाँ पे रखा गया था। सर को बोला कि सर आप हमें यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ के गए? सर ने बोला हम नहीं गए, लोकेशन भी दिया। और फिर बोला कि क्या लगता है वहाँ पे जहाँ पे आपको रखा गया था वहाँ पे गलत काम किया जाता है? आप हाँ। लोगों को लेके कहाँ रखा गया था पहले रखा गया था रेड लाइट एरिया में, कपासेरा। यहाँ पे कितना लड़की? हम जितने लोग गए थे कितना गए थे? 30, हाँ। तो 30 को पहले यहाँ रखा, और फिर बोला कि रेंट का रूम का भाड़ा देने के लिए, तो हम सब लोग 3000 करके दिया। तो यहाँ से हमें बोला नहीं कि हाइट वेट दिखा के फिर नर्सिंग का जॉब देगा बोल के, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सबको आउट किया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आप लोग का हाइट वेट ठीक नहीं है, आप लोग को यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें बोला कि गाजियाबाद यहाँ पे और दूसरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे देंगे। हमें पहले बोला कि शारदा हॉस्पिटल में देगा बोल के, लेकिन ये शारदा हॉस्पिटल देने के बाद हमने बोला कि सर हमें शारदा हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया? बोल रहे कि यहाँ पे शारदा हॉस्पिटल में अगर देंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और पैसा भी नहीं देंगे मंथली, ऐसा बोल के हमें फिर यशोदा हॉस्पिटल में लेकर गया। अच्छा, बोराक वैली से क्या? 30 लोग गए हैं हम लोग। तुम लोग कितना गए थे? हम बोराक वैली से 30 लोग गए हैं। आप सब लड़कियाँ? सब लड़की। आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि सर हमें उल्लू बना रहे और फिर हमें बेचना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो हमें बिना बताए क्यों आ गए सर? तो फिर आप लोग को भाग के आया? हम लोग का बात यही है कि हम सर को वहाँ से कैसे भाग के आया या? हाँ, वहाँ से भाग के आए। हमें एक गार्जियन मिला है, गार्जियन को भैया है हम लोग का, तो हमने बोला कि हमें यहाँ से लेकर जाओ ऐसा बोल के। फिर कितना लोग आया पास में? 18-19 लोग आए हैं हम लोग। बाकी लड़की लोग कहाँ है? बाकी लड़की लोग कहाँ है वो हमें नहीं पता। उन लोगों के साथ क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को क्या लगता है? पता नहीं सर, तो उन लोगों को क्या बोला और क्या नहीं ये भी नहीं पता। उन लोगों का खबर भी हम लोग को नहीं पता। जो आप लोगों को क्या लगता है किस लिए लेके गया था? हमें यही लगता है कि वहाँ पे ले जाकर हमें बेच दिया जाएगा, हमें शक हुआ ऐसा, इसलिए हम भागकर आ गए। टोटल कासा, आप लोग पूरा कासा डिस्ट्रिक्ट का हो? आपको लगता है क्या जो आपका क्या निखिल सर ने क्या बोला सर का नाम? सुमित्रा सर। सर वो महिला पत्रकार से जुड़ा हुआ है क्या? आपको लगता है क्या?
ऐसा ही लगता होगा सर, ऐसा ही होगा इसीलिए तो। क्या लगता है आप लोगों को? ये महिला का प्रचार करते हैं क्या, सुमित जो बोला है आपको? ये तो हमें नहीं पता सर, पर हमारे साथ जो हुआ वो हमें जो शक हुआ, हमें लगा ऐसा, इसीलिए हम भाग कर आ गए। अच्छा, आप लोग गया कि ये जो जितना भी लड़की गया ये कहाँ का है? सब काछार से हैं सर, बोराक वैली पूरा हर डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। जाने से पहले आप लोगों से पैसा लिया था? जाने से पहले नहीं लिया, बट वहाँ पे जाने के बाद हमें हॉस्टल का पैसा एडवांस 3000 देना पड़ा। हमने बोला हॉस्टल देखने के बाद देंगे, पर वो लोग हमें बोला अभी एडवांस दे दो पैसा, वरना रूम खाली करो। हम रात को रूम खाली करके कहाँ जाते, इसलिए मजबूरन पैसा देना पड़ा। किसका पैसा दिया आप लोग? और हम लोगों ने पहले बोला गया कि सिर्फ टिकट का पैसा देंगे 1400, बाकी सर लेकर जाएंगे, पर हमें 1400 टिकट का पैसा लेकर एक ऑटो भाड़ा, एक टुकटुकी भाड़ा तक हमने पैसा दिया है सर, और खाना भी खुद का खाया है, और ड्रेस का पैसा भी हमने दिया है। किसको दिया है आपने? सुमित्रा सर को। सिलचर का जो सुमित्रा? हाँ सर। आने जाने में कितना खर्चा हुआ होगा? बहुत खर्चा हुआ है सर। अभी आपका मांगे क्या है, सरकार से क्या मांग रखते हैं या प्रशासन के? हम ये सेंटर बंद करवाएंगे और सर लोग को सज़ा दिलवाएंगे, और चाहे तो हमारा पैसा हमें वापस मिलना है, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से हैं सर। बहुत उम्मीद लेकर हम उतना दूर गए थे, इतना बड़ा सपना लेकर गए थे, मम्मी पापा को सपना दिखा कर गए थे सर। नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बहुत मुश्किल से वहाँ से लौट कर आए हैं, घर से पैसा छोड़ा, उसके बाद टिकट करके हम वहाँ से भाग कर आए हैं सर। कितने तारीख को गया था और कितने तारीख को आ गए? 15 तारीख को गए, 16-17 तारीख को पहुँच गए, और फिर उधर से 22 तारीख को हम गाड़ी पर ढले। हाँ, बड़ा यशोदा हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर पेशेंट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या मतलब खाली हॉस्पिटल में कोई डस्टिंग करवाएगा? यह आप लोग समझदार है। इतना बड़ा हॉस्पिटल में अगर पेशेंट नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? वो लोग ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको खुद पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं, बस वही है। और ये लास्टली हम बोलना चाहें कि अगर इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो कैंडिडेट अच्छे से काम कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो बदनामी हुआ, नेक्स्ट हमारे जो कैंडिडेट अगर हेल्थ केयर का टारगेट मिलता है तो वो गार्जियन को नहीं भेजेंगे, तो ये हमारे सेंटर के लिए भी बहुत बदनामी है। और जैसे इसमें बताया जा रहा है, जैसे मतलब कैंडिडेट को ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, किसी के हाथ में दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो रात ही रात हमने सारे कैंडिडेट से बात किया, उनका फीडबैक लिया, वीडियो बनवाया, वो सारा मतलब आप देख सकते हैं। उसके अगेंस्ट मतलब आप अगर चाहें तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। यही निवेदन है। थैंक यू।